So praise the Lord, brothers. So praise the Lord, brothers and sisters. We can start with the meeting, the sharing of the Word of God. Brother Ritik is on the line. Yes, brother. Okay. So let us turn to John chapter 18, the Gospel of John chapter 18, यूहन्ना की किताब उसका 18वां अध्याय निकालेंगे, verse 33 to 38. 33 वचन से 38 वचन तक। This is the time when Jesus was arrested and about to put on trial before Pilate. और ये वो समय है जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया था और पिलातुस के सामने उनको ले जाया जाना था। And verse 33 with 8, it says, Pilate therefore entered into the praetorium and summoned Jesus and said to him, Are you the king of the Jews? और तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? 34, Jesus answered, Are you saying this on your own initiative or did others tell you about me? और 34 वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? Verse 35, Pilate answered, I am not a Jew, am I? Your own nation and chief priests have delivered you up to me. What have you done? और 35 वचन लिखा है, पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तूने क्या किया है? And verse 36, Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then my servants would be fighting, that I would not be delivered up to the Jews. But as it is, my kingdom is not of this realm. 36वें वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। Yes. So this is the testimony which Jesus gave when he was about to kill people who are about to kill him. और यीशु मसीह ने ये गवाही तब दी जब लोग चाहते थे कि उन्हें मार डालें। So Jesus was the most perfect person and the best person that ever lived in this whole world. और यीशु मसीह सबसे अच्छे और सबसे सिद्ध व्यक्ति थे जो पूरे अभी तक का जितना समय है इस धरती पर एक कोई व्यक्ति जिया होगा। And all the priests who read the Bible and were so angry with him that they wanted to put him to death. और जितने यहूदी जो थे जो वचन को पढ़ते थे वो चाहते थे कि वो बहुत गुस्सा थे और यीशु मसीह को मरवाना चाहते थे। And Pilate was not a Jew, but he was wondering what this person has done. I cannot understand. And he asked Jesus, What have you done? और पिलातुस जो था वो एक यहूदी नहीं था, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया है, इसलिए वो पूछ रहा था कि तूने क्या किया है कि लोग तुझे मरवाना चाहते हैं। Are you the king of the Jews? और उसने यीशु मसीह से पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? At that time, the only king was King Caesar from the Roman Empire. और उस समय सिर्फ एक ही राजा था और रोमियो के ऊपर वो सीजर था। And the priests and the Pharisees began to say that Jesus also wants to become king. और जो याजक थे और जो प्रधान थे वो पिलातुस को बोल रहे थे कि यीशु मसीह भी चाहता है कि वो राजा बने। And Jesus gave this classic answer in verse 36, My kingdom is not of this world. और फिर यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छा उत्तर पिलातुस को दिया कि यहाँ का ये जो संसार है इसका ये मेरा राज्य नहीं है। Jesus was most suited to become the king of this whole nation of Israel and the king of the world. और यीशु मसीह एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो सिद्ध थे और जो लायक थे इसके कि वो पूरे इजराइल के ऊपर राजा ठहराए जाए। He had the best character and the best nature of any human being in this world. और वो सबसे अच्छे और उनके पास ऐसा स्वभाव था जो पूरे ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा स्वभाव नहीं हो। But Jesus said, My kingdom is not of this world. पर यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। Because he said, if my kingdom was of this world, then my servants would be fighting. और उन्होंने कहा कि अगर मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते। So people who belong to this world always fight and quarrel and do all the wrong things. और इसलिए जो इस संसार के लोग हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं और झगड़ते रहते हैं और अपने हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं। The prince of this world is the devil. और इस संसार का जो राजा है वो शैतान है। And when Jesus was tempted, the devil said,
if you bow down before me, I'll give you all the kingdoms of this world. और जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली थी तो प्रभु को उसने कहा था कि अगर तू मेरे सामने दंडवत करेगा तो मैं इस संसार का सारा जो गौरव राज्य है वो सब कुछ तुझे दे दूंगा। And Jesus, the devil could not be telling lies to Jesus because he was in control of all the kings and all the authorities of the world. और जो शैतान है वो कभी भी यीशु मसीह से झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए वो बोल रहा था, इसलिए वो उसने प्रभु को बोला था क्योंकि उसके पास इस संसार के जितने राजा थे और जितने प्रधान थे उन सब का साम्राज्य उसके हाथों में था। But Jesus was not wanting the things of this world for a short time. He was wanting eternal things for himself and the people who were following him. और यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि वो इस संसार के जो छोटा सा समय है उसका राज्य और धर्म राज्य और जो गौरव है वो मिले। वो चाहते थे कि अनंत काल के लिए जो महिमा रखी हुई है वो उन्हें भी मिले और उन लोगों को भी जो प्रभु का पीछा करते हैं। His kingdom, his government was going to be a kingdom where there's love and peace and joy and no fighting. All people had so much of goodness in their life. और जो प्रभु का राज्य है, जो परमेश्वर की सरकार है, वो उसमें सिर्फ प्रेम, शांति, आनंद, कोई भी किसी से नहीं लड़ेगा। ये सारी बातें प्रभु के राज्य में होगी। Nobody would run after honor or money. और कोई भी व्यक्ति पैसों के पीछे और खुद के सम्मान के प्रति नहीं भागेगा। There will be no jealousy and fighting there. और वहां पर कोई भी जलन नहीं होगी, कोई भी किसी से लड़ेगा नहीं। Here in this world, if people want to become big and great, then they have to become jealous and fight and run after money. और यहाँ इस संसार के जो लोग हैं वो महान बनना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, जलन इसलिए एक दूसरे से जलन रखते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं। That's why Jesus said, "My kingdom is not of this place." और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। Yeah, I'm not running after the things of this world. और इसलिए मैं इस संसार की चीजों के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। I've got a better kingdom to offer people who follow me. और मेरे पास एक इससे भी बेहतर राज्य है जो मैं अपने लोगों को जो मेरा पीछा करना चाहते हैं उनको दूंगा। And that kingdom is inside us. और वो जो राज्य है वो हमारे अंदर है। See, all of us are made up of three parts. और देखिए हम सभी लोग तीन चीजों से बने हुए हैं, Spirit, soul and body. आत्मा, देह और शरीर। आत्मा, देह और प्राण। आत्मा, प्राण और शरीर. Three things. Yes. And the most important part is the spirit which is there inside our lives. और जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है इन तीनों में से वो है आत्मा। Because God is spirit and we have to worship and fellowship with God in the spirit. और क्योंकि परमेश्वर जो है वो आत्मा है और हम उनके साथ जो संगति वो आत्मा में ही कर सकते हैं। Now, if our spirit is right with God, then we get the Holy Spirit comes to our life and we have fellowship with God, and all the other things become good in our own life. और अगर हमारी आत्मा सही है तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमारे साथ संगति में आएगा और हम परमेश्वर के संगति करेंगे और हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। Then our soul, that is our mind and our emotions, that also gets better. और जो हमारा प्राण है जिसमें हमारे भावनाएं आती हैं और जिसमें हमारे जीवन आता है वो भी बेहतर हो जाएगा। And that results in our body also getting better. That means all that we do in our body will be according to what the Holy Spirit is leading us. और फिर जो हमारा शरीर है उसमें जो हमारी देह है उसमें भी सब कुछ बेहतर होगा क्योंकि जो कुछ पवित्र आत्मा हमें कहेंगे हम उनके अनुसार ही काम करेंगे। Now people in this world have give very little importance to the spirit and the soul. और जो इस संसार के लोग हैं वो आत्मा को और प्राण को बहुत कम महत्व देते हैं। They are mainly interested in the body. वो खास तौर पर उनका जो दिलचस्पी है वो सिर्फ शरीर में है। How to get pleasure for the body. कैसे इस शरीर के लिए बहुत मजा लिया जाए। How to have good food, how to have sex, and how to have good sleep. और कैसे अच्छा अच्छा खाना खाया जाए, कैसे लैंगिक जो प्लेजर है वो लिया जाए और कैसे अच्छा से सोया जाए। How to get more and more things of this world, get more and more money. और कैसे ज्यादा से ज्यादा इस संसार के पैसों को लिया जाए और कैसे इस संसार की जो अच्छी अच्छी वस्तु है उनका लाभ उठाया जाए। How to enjoy yourself, having good music and so many entertainment in this world. और कैसे बहुत ही मजा किया जाए इस संसार का जो के गीत हैं, गाने हैं और इस संसार
में बहुत सारी जो चीजें उनसे कैसे अपने आप को मनोरंजन किया जाए, But they are not interested in having a good spirit. और उनका कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि एक अच्छी आत्मा उनके पास हो। And it's not to have, they don't want to have a good attitude. They always have a bad attitude. उनको बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनका जो स्वभाव है वो अच्छा हो, वो हमेशा बुरे स्वभाव के साथ जीते हैं। And a bad motive every time, a very selfish and proud motive. और हमेशा उनका जो मोटिव होते हैं वो हमेशा खराब होते हैं, और हमेशा स्वार्थ के लिए वो लोग जीते हैं। Motive, I think, maksad, no? मकसद, ये Yeah. सर। So the motives of every human being is very, very bad. और हर एक मनुष्य का जो मकसद है जो वो स्वार्थ भरा है और बहुत ही खराब है। Even the good things that they do, they have a very bad motive, very selfish and a proud motive. और जो अगर वो कुछ अच्छा काम भी करते हैं तो उसके पीछे भी उनका मकसद बहुत खराब है, कुछ स्वार्थ उसके अंदर रहता है। That is why God said that whenever you think that you have done many good things, all your right things, it is like filthy garments before me because you have done with a very selfish and a proud motive. इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जब भी मनुष्य तुम लोग कुछ अच्छा काम करते हो तो वो परमेश्वर की नजरों में मैले चित्रों के समान है, क्योंकि वो जितने भी अच्छे काम है वो भी स्वार्थ के साथ किए गए हैं। The only time our motives and our spirit becomes right is when we become born again and the Holy Spirit comes into our life. और जो सबसे अच्छा मकसद हम सारे काम जब अच्छे Hello? जन्म होता है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आता है। So when the Holy Spirit comes to our life, it shows our selfishness and our pride, and we humble ourselves. And the Lord tells us, the Holy Spirit tells us to do things with a good motive. और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो वो हमारे जो स्वार्थ है उसको दिखाते हैं, और फिर हम हमारे जो मकसद और जो हम काम करते हो सब कुछ अच्छा होता है। So even when we become believers, there are a lot of bad motives in our life. The Holy Spirit shows that your aim and ambition in the life is not at all good. और जब हम विश्वास में आते हैं, जब हमारा नया जन्म होता है, तब पवित्र आत्मा हमें दिखाते हैं कि जो तुम्हारे उद्देश्य हैं, जो तुम्हारे मकसद है, वो सब खराब हैं और स्वार्थ से भरे हुए हैं। That is why it says in 2 Corinthians chapter 7. इसलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वें अध्याय में लिखा है, Verse 1, it says, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of the flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God. पहला वचन, हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता की ओर सिद्ध करें। As we follow Jesus Christ, we will find that how selfish and how proud we are, and then we have to cleanse our inner attitudes. और जैसे जैसे हम प्रभु को के पीछे चलते हैं, वैसे वैसे हमारा जो स्वार्थ है और हमारा जो घमंड है वो हमें दिखने लगता है, और फिर हमें अपने आप को उन सारे स्वार्थ और घमंड से शुद्ध करके अपने आप को पवित्रता की ओर बढ़ना है। The Holy Spirit shows us we are so much desire for all the earthly pleasures and greed for money, and so many things are still there in our own lives. और पवित्र आत्मा हमें दिखाते हैं कि हमारे अंदर शरीर में, हमारे देह में कितना हम चाहते हैं कि इस शरीर की अभिलाषाओं के लिए जिएं, और पैसों का जो प्रेम है वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा में दिखाते हैं। And Jesus is the only one who lived a perfect life. He never had any bad motive and any bad attitude towards anybody. और यीशु मसीह ही इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो सिद्ध थे, और उन्होंने अपने पूरे जीवन भर कोई भी उनके जीवन में कोई भी बुरा मकसद नहीं था, और किसी के भी प्रति उनके अंदर कोई भी बुरी भावना नहीं थी। Even his own disciples, the 12 of them, they were fighting for becoming who will become who will be leader among us. और उनके जो 12 चेले थे उनके बीच में भी इस बात को लेकर झगड़ा हो गया था कि कौन सबसे महान बनेगा। So the Lord Jesus had to speak to them that, in my kingdom, people who are great are the people who serve and who have a very humble attitude. और यीशु मसीह ने उन सभी को समझाया कि मेरे राज्य में जो सबकी सेवा करेगा, जो नम्र और दीन रहेगा, वही सबसे महान होगा। In heaven, the great people of this world are the people who are very humble and who have very good and a kind attitude.
और स्वर्ग में जो सबसे महान लोग होंगे वो लोग होंगे जो इस संसार में जो बहुत नम्र और दीन थे और जो जिनका स्वभाव बहुत अच्छा था। In the world, the people who are great are the people who are rich and who have got a lot of influence, and all these things are very important in the world. और जो इस संसार में जो जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, जिनका बहुत मान सम्मान होता है और जो बहुत जान पहचान जिन लोगों की रहती है, उन लोगों को बहुत महान कहा जाता है इस संसार में। If you are a big leader or if you are a big doctor, then people will appreciate you. और अगर आप एक बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े एक डॉक्टर हैं, तो लोग आपको बहुत सराहेंगे। But if you are an ordinary person just doing a labor class, nobody will look at you. और अगर आप एक कामगार व्यक्ति हैं, एक आम व्यक्ति हैं, तो कोई भी आपको सराहेगा नहीं। So the Lord Jesus said that his kingdom was not of this world. और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि उनका राज्य इस जगत का नहीं है। So when we follow the Lord also, the people of this world will not appreciate us. और इसलिए जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो लोग हमें सराहेंगे नहीं। Just as he did not appreciate Jesus at all. जैसे उन लोगों ने यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं सराहा। So Jesus did good to all men every day of his life. और यीशु मसीह ने हर दिन सबसे अच्छा काम, सबसे बेहतर काम किया था। He healed people. He did good, only good and good to every human being. उसने लोगों को चंगा किया। उसने हर दिन हर एक मनुष्य के लिए जो भी उनसे मिलते थे उन सभी के लिए उन्होंने सबसे बेहतर किया। He worked so hard. उन्होंने बहुत मेहनत की। He didn't have much comfort in this world. He said, even I don't have many times a place to stay. और उन्होंने इस संसार में बिल्कुल भी बहुत अच्छा आरामदायक जीवन नहीं बिताया। कई बार उनके पास रहने की जगह भी नहीं होती थी। But he was the happiest person of this world. पर वो सबसे खुश व्यक्ति थे इस पूरे संसार के अंदर। But so then why did this such a good man have to die? और क्यों एक सबसे अच्छे व्यक्ति को इस संसार के अंदर मरना पड़ा? Why did all the people who had the Bible in their hands said, kill him, crucify him? और क्यों उन सभी लोगों के जिनके हाथ में वचन था, वो जिनके हाथ में बाइबल थी, उन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि यीशु मसीह को मार डालो? That is written, it says, verse 37, Pilate said to him, so you are king? Jesus answered, you say correctly that I am king. For this I have been born, for this I have come into this world to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. और यूहन्ना का 18वां अध्याय उसका 37 वचन। करेक्ट। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। Yes. So Jesus said, I've been born to become a king. और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि मैं राजा बनूं। So I've called to be witness to the truth. और मैंने गवाही दी है, सत्य की गवाही दी है। And because Jesus told the truth, people hated the truth. और यीशु मसीह ने सत्य बोला, इसलिए लोगों ने उनसे नफरत किया। The people who were hiding their sin hated him. और जो लोग अपने पापों को छुपाते थे उन सभी लोगों ने यीशु मसीह से नफरत की। But those who loved the truth about themselves, they said, heard the voice of the Lord. और जो लोग अपने खुद के प्रति जो उनका सत्य है उससे प्रेम रखते थे, उन लोगों ने परमेश्वर के शब्द को सुना। The last verse says, everyone who is of the truth hears my voice. और फिर आखिरी वचन में लिखा है कि जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। So if you are following the Lord and want to obey the truth, you will hear the voice of the Lord. और अगर आप प्रभु का पीछा करना चाहते हैं और आप सत्य से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर की प्रभु की आवाज को सुनेंगे। But if you want to follow the world and do want to live in sin, you will not hear the voice of the Lord. और अगर आप संसार के पीछे चलते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, तो आप परमेश्वर की प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। Then you will not like to read the Bible. You don't want to pray. और आपको फिर वचन पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, आप प्रार्थना भी नहीं करेंगे। You won't want to come for the meetings. और आप नहीं चाहेंगे कि आप सभा में आने की इच्छा भी नहीं होगी। Because that interest for God goes away because you have no interest in the truth.
और आपका जो दिलचस्पी थी सत्य के प्रति परमेश्वर के लिए वो सब कुछ चला गया है। But the Pharisees were like that. They were reading the Bible, they were praying, they were fasting, and they were going for the meetings. और पर फरीसी जो थे वो वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, सभा में भी जाते थे, But they were just doing as a cover up. They were not loving the truth. पर वो सिर्फ एक अपने आप को ढांपने के लिए करते थे, वो सत्य से प्रेम नहीं करते थे। Like there are so many religious people in this world today who do so many prayers and so many traditions in the whole day. There are so many lives are full of things, but they are not coming to the truth. पर बहुत सारे इस संसार में भी ऐसे लोग हैं जो धार्मिक व्यक्ति जो लोग हैं जो सिर्फ प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे उपवास भी रखते हैं, पर उनको अपने सत्य से कभी भी पहचान नहीं हुई है। Even among Christians, there are so-called Christians who are just reading the Bible, but they cannot understand anything, and they are going for meetings and they are going fasting, but God is not. They cannot hear the voice of God. और ऐसे ही बहुत सारे लोग मसीह में भी हैं जो बहुत नामधारी मसीह हैं, वो वचन पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना सभाओं को में जाते हैं, प्रभु के गीत गाते हैं, पर उनको प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती है। But why? ऐसा क्यों होता है? Because they don't want to hear the voice of Jesus, the voice of truth, telling them to change. और उनको क्योंकि वो उनको परमेश्वर की प्रभु की आवाज नहीं अच्छी लगती, जो उन प्रभु की आवाज हमेशा सत्य कहती है उनके प्रति, क्यों ताकि उनका जीवन बदले। The Lord, the Holy Spirit, and Jesus, the Spirit of Jesus, always tells us to change. और पर यीशु मसीह का जो आत्मा है, पवित्र जो प्रभु का आत्मा है, वो हमेशा हमें बदलने के लिए कहता है। If we have no desire to change, we will not hear the voice of the Lord. अगर हमारे अंदर बदलने की इच्छा नहीं है तो हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। But if we have a desire to change, then we will hear the voice of the Lord. Then we will not care about what the world thinks about us. और अगर हमारे अंदर इच्छा है कि हम अपने आप को बदलें तो परमेश्वर की आवाज को हम सुनेंगे, इसके बावजूद कि लोग कुछ भी कहें, इस संसार के लोग क्या कुछ भी सोचें। So we will hate sin and we will love the things that are pleasing to the Lord. और हम फिर पाप से नफरत करेंगे और उन चीजों से प्रेम करेंगे जो परमेश्वर को अच्छी लगती है। So all the outer things in this world, we will not get that. People will harass us. और जो इस संसार के लोग हैं वो फिर हम लोगों को सताएंगे उन बाहरी चीजों के कारण। We may not make much money in this world. और हम इस संसार में बहुत सारा पैसा नहीं बना पाएंगे। We may not become great in this world. और हम इस संसार में महान नहीं बन पाएंगे। See, Jesus deserved to be the king of Israel. और यीशु मसीह योग्य थे कि वो पूरे इजराइल के ऊपर राजा ठहराए जाते। But he did not want to become the king of disobedient type of people. और पर वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसे अनाज्ञाकारी लोगों के राजा बने। He wanted to be king among people who loved the Lord and who were obedient. और वो चाहते थे कि वो उन लोगों के राजा बने जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो आज्ञाकारी हैं। He wanted to be free from sin. वो ऐसे लोगों के राजा बनना चाहते थे जो लोग अपने आप को पाप से आजाद करना चाहते हो। If you want to be free from sin, the Holy Spirit will speak to you. अगर आप पाप से आजाद होना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। If you want to humble yourself, the Holy Spirit will speak to you. अगर आप अपने आप को नम्र दीन करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। If you don't want to change, God has nothing to speak to you. अगर आपको अपने आप में कोई बदलाव नहीं करना है तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेंगे। And on the contrary, you will start hating the things of godly people. और आप इसके क्या करने लगेंगे कि आप उन लोगों से नफरत करने लगेंगे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Because the Pharisees did not want to change their hidden lives, they hated the Lord. और ऐसा ही फरीसियों के साथ था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके अंदर कोई बदलाव हो, इसलिए वो प्रभु से नफरत करने लग गए। They hated the Apostle Paul, they hated all the early disciples. और उन लोग फरीसियों ने प्रेरित पौलुस से और उन सभी चेलों से जो पहली शताब्दी में थे, उन सभी से बहुत नफरत की। Because all these people, they loved the world and the things of the world and they wanted to become great. और क्योंकि वो लोग इस संसार के अंदर महान बनना चाहते थे, इस संसार के अंदर बहुत सारा पैसा और बहुत सारा महानता उनको चाहिए थी। The Bible says that you cannot love the world and you cannot love God at the same time. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक ही समय पर इस संसार से और परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। Says 1 John chapter 2. पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय
verse 15. 15वां वचन, Do not love the world, nor the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. तुमने तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। It says, verse 16, all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is of the world. और 16वें वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। So he said that all the desires for all greatness and for money and for pleasure, they are not from God, they are from this world. और इस वचन में लिखा है कि इस संसार की जो अभिलाषाएं हैं, जो आंखों की अभिलाषाएं हैं, जीविका का घमंड है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो संसार की ओर से है। So we can enjoy all these things, but we must not love the pride and the pleasures of this world more than God. और हम इन सभी चीजों का आनंद, ब्रदर प्लीज रिपीट इट। We must not love these things more than we love God. और हमें इन चीजों से प्रेम नहीं करना है, परमेश्वर से हमें प्रेम करना है। If we make our decisions in life according to the worldly people and our worldly desires, then our desire for God will go away from our life. और अगर हम अपने जीवन के निर्णय सांसारिक लोगों के हिसाब से, संसार की बातों के हिसाब से लेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं रहेगा। For example, to become somebody great in this world. और उदाहरण के तौर पर अगर किसी को इस संसार के अंदर महान बनना है तो, or to be great and famous among Christians, और अगर महान बनना है मसीहों के बीच में, or to become very rich, और या तो किसी को अगर बहुत धनवान बनना है, and or to get lot of money and to enjoy ourselves, और बहुत सारा पैसा चाहिए और इस संसार में बहुत सारा आनंद चाहिए, and the great desire to eat and drink a lot and enjoy our lives. और बहुत ही अब उनके अंदर अभिलाषाएं हैं कि वो सिर्फ खाए पिए और सिर्फ आराम ही करे संसार में। But when we start doing these things, we find that the love and the desire for God becomes less and less in our own life. और अगर हम अगर ऐसी चीजें अगर हम करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम बहुत कम होता जाएगा धीरे धीरे कर। The Holy Spirit also shows us, he says in verse 17, that all these worldly things are going to be passing away and all these desires that are there are going to go away. और 17वें वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा कहते हैं संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। So we have to do what God wants us to do. और इसलिए हमें वो करना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। And what does God wants us to do is to be free from sin. और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, ये कि हम पाप से आजाद हों। And to declare the gospel everywhere that Jesus Christ can save us from our sin. और ये सुसमाचार हर जगह प्रचार करें कि यीशु मसीह है जो हमें हमारे पापों से बचा सकता है। This is the good news that can save our life for all eternity. और ये सबसे अच्छा सुसमाचार है जो हमें हमारी आत्मा को अनंत काल के लिए बचा लेगा। We can tell it to our friends, to our people in our workplace, to our neighbors and everybody whom we meet. और हम इसे अपने दोस्तों को, हमारे ऑफिस में जो लोग हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को, हमारे पड़ोसियों को, हर किसी को ये सुसमाचार बता सकते हैं। And when we tell this good news, most people will not like it. और जब हम ये सुसमाचार सुनाएंगे तो अधिकतर लोग इस बात को अच्छा नहीं समझेंगे। We will not have many friends. और हमारे बहुत सारे दोस्त या मित्र नहीं होंगे। God will be our close friend. पर परमेश्वर हमारे सबसे नजदीक सबसे अच्छे मित्र होंगे। Bible says, if God is for us, who can be against us? और वचन कहता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। Nobody can take you and me out of God's will. और कोई भी आपको और मुझे परमेश्वर की इच्छा के बाहर नहीं लेकर जा सकता। The Lord is watching over his children who obey him very, very, very closely. और परमेश्वर अपने बच्चों को, जो खास तौर पर जो उन प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं, उनको बहुत ही करीबी से प्रभु उनके ऊपर नजर बनाए रखे हैं। He will take care of them, he'll take care of their families, he'll take care of all the eating and drinking and their future.
और परमेश्वर उन अपने सभी बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, कि उनके भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, खाने पीने का हर एक चीज का प्रभु ध्यान रखते हैं। because their desire is to follow the Lord. क्योंकि उन लोगों की जो सर्वोत्तम इच्छा है वो ये है कि वो परमेश्वर का पीछा करें। Their desire is not to make money or to get the pleasures of this world. और उनकी ये इच्छा नहीं है कि इस संसार में बहुत सारा पैसा बनाए और संसार की अभिलाषाओं के लिए जिए। Their desire is to tell everybody about the love of God. और उनकी ये इच्छा है कि वो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताए। And that is the love of God is the truth of God. और जो परमेश्वर का प्रेम है वो सत्य है। That God hates sin. ये सत्य कि परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं। And we must all repent. और हम सभी को पश्चाताप करना चाहिए। Brothers and sisters, we must always tell everybody that God loves everybody, and that is why everybody must repent. और इसलिए भाई बहनों, हमें हर किसी से ये कहना चाहिए कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, इसलिए हर किसी को अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। Acts chapter 17. और प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय निकालेंगे। Verse 30. 30वां वचन। He said, therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now declaring to men that all everywhere should repent. इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। So we have all lived, people everywhere live according to their own desires, according to their own interests. But God said, doesn't matter what you have done in the past. Now that you heard the gospel, you must change your ways, you must change your lifestyle. और उन सभी लोगों से जो लोग प्रभु को जान गए हैं, प्रभु उन सारी बातों को भुला देते हैं जो उन लोगों ने अनजाने में करी थी अपने भूतकाल में। वो प्रभु बोलते हैं कि उन सब चीजों को भूल गए हैं, अब वो अपने मार्गों को बदले और प्रभु के अनुसार जिए। That is known as repentance. और इसी को पश्चाताप कहा जाता है। If we have quarreled with somebody, we got to fight with somebody, go and make up and ask forgiveness. और अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है, आपका किसी से बहस हो गई, तो जाकर उनसे बातचीत करिए और उनसे माफी मांगिए। If you have stolen something and taken somebody's things, go and return it back. और अगर आपने किसी का कुछ सामान चुराया है तो वो जाकर उसे लौटा दीजिए। If you have told lies, go and set that thing right. Tell that I have told a lie and set it right. और अगर आपने झूठ बोला है तो आप जाकर बोल दीजिए कि मैंने झूठ बोला था, और उन्हें सच बता दीजिए। Then we find a wonderful change taking place in our life, the Holy Spirit coming, and then we find that we come closer to God. और फिर हम देखेंगे कि बहुत ही अद्भुत काम हमारे जीवन में होने लगेगा, और जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएंगे और हमें बदलेंगे। We can have a clear conscience and a peace of mind. और हमारा एक शुद्ध विवेक होगा और हमारे मन में शांति होगी। The Bible says that we must not hide our sin. और वचन कहता है कि हमें अपने पापों को नहीं छुपाना चाहिए। Those who hide their sin will not prosper. और जो लोग अपने पापों को छुपाते हैं उनका कभी कल्याण नहीं होगा। But those who confess it and forsakes them will have mercy from God. और पर जो लोग उसे मान लेते हैं और परमेश्वर से पश्चाताप कर लेते हैं, उनके ऊपर दया की जाएगी। And this is how the Lord Jesus Christ wants us to live every day. और यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इसी प्रकार हर दिन जिए। So we don't care much for our earthly life and our earthly progress. और इसलिए हमें अपने संसार के जीवन के बारे में ज्यादा विचार नहीं करना है, इस संसार की प्रगति के बारे में विचार नहीं करना है। We want to have a spiritual progress in our life. और हमें अपने जो आत्मिक उन्नति है उसके ऊपर ध्यान देना है। Right? We must keep our conscience clean all the time. और ये कि हम अपने विवेक को हमेशा शुद्ध रखें। Because love for God and love for our people around us. और परमेश्वर के लिए हमारे अंदर प्रेम हो और आसपास के लोगों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए हमारे हृदय में प्रेम रहे। And this is how we live in the kingdom of God. और यही इसी प्रकार हम परमेश्वर के राज में रहेंगे। And those people who are not in the kingdom of God, in the kingdom of this world, under the control of the devil, cannot understand us. और जो लोग इस संसार के राजा जो है शैतान के जो अधीन है, इस संसार के लोग, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी।
when people curse us, we will bless them. और जब लोग हमें गालियां दें या फिर हमें श्राप दें तो हम उन्हें आशीष देंगे। We can tell them in a very humble way what is the way to God. और हमें उन्हें बहुत ही दीनता पूर्वक, नम्रता पूर्वक उन्हें परमेश्वर के मार्ग को बताना है। If they love the truth will set them free. और अगर वो सत्य से प्रेम करेंगे तो सत्य उन्हें आजाद कर देगा। The same thing with us. The more and more we love the truth of the word of God, there will be freedom in our own life. और ऐसा ही हमारे जीवन में भी जैसे जितना अधिक हम परमेश्वर के सत्य से प्रेम करेंगे उतना ही अधिक हमारे अंदर छुटकारा और आजादी आएगी। Free to praise God, free to pray, and free to bless others. हमें आजादी मिलेगी परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, दूसरों को आशीषित करने के लिए। Free to forgive others. दूसरों को क्षमा करने की आजादी मिलेगी। Free to give to others, bless others with good things. और आजादी मिलेगी, हम दूसरे लोगों को अच्छी चीजों से आशीषित कर पाएंगे। This is how Jesus lived. और इसी प्रकार यीशु मसीह ने भी अपने जीवन को जिया। Most of the people of this world, even the rich people and the famous people, they live only for themselves and to get more and more for themselves. और इस संसार के जो अधिकतर लोग हैं, जो बहुत अमीर भी हैं, वो यही चाहते हैं, वो सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने लिए जीते हैं। But Jesus said it is more blessed to give than to receive. और यीशु मसीह ने कहा कि ये ज्यादा आशीषित वो है जो देते हैं, ना कि जो लेते हैं। So that is why all our wonderful our leaders who are Jesus and the apostles and all the godly people, they said, we don't have much silver and gold, but we have whatever we have, we give to you. और इसलिए जो हमारे अद्भुत हमारे जो लीडर्स हैं, यीशु मसीह और वो सारे प्रेरित और जितने भी ईश्वरीय व्यक्ति जो इस संसार में हैं, वही हमारे जो लोग कहते हैं कि हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, पर जो कुछ हमारे पास है हम वो तुम्हें दे देते। So whatever we have, we must cleanse ourselves, we must be holy, and we can bless other people with the gospel. और इसलिए हमें अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, और जो कुछ हमारे पास है उससे हम दूसरों को आशीषित करें। And God has called you and me, brothers and sisters, to be disciples of Jesus Christ, to give this gospel of God. और इसलिए प्रभु ने, भाइयों बहनों, हम सभी को प्रभु ने बुलाया है कि हम इस अच्छे सुसमाचार को दूसरों को बता सकें। To be disciples of Jesus Christ. कि प्रभु यीशु मसीह के चेले बने। He said, go into all the world and preach the gospel. और प्रभु ने कहा कि हर जगह संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। Matthew chapter 28. और ये मत्ती की किताब उसके 28वें अध्याय में लिखा है। Making disciples of all people. और सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। And baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. और उन लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। And teaching them all that Jesus has commanded us. और उन लोगों को वो सारी बातें सिखाओ जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें मानना सिखाई है। So that we should learn to obey it. और उन्हें ये भी सिखाएं कि वो उन आज्ञाओं को माने। It is so nice when the God's kingdom comes, there are obedient, good and humble people in God's kingdom. और ये बहुत ही अद्भुत बात होगी जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो उसमें सिर्फ आज्ञाकारी और प्रभु से प्रेम करने वाले लोग होंगे। There won't be liars and people who are seeking the things of this world and all those things. Those people will not be there in the kingdom of God. और वो परमेश्वर के राज में वो वैसे लोग नहीं होंगे जो झूठ बोलते हैं, जो चोरियां करते हैं या फिर जो पाप करते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज में नहीं होंगे। All these people are found here in this world, and in most churches, lot of these people who are worldly minded are found. और बहुत सारे ऐसे ही लोग इस संसार के अंदर रहते हैं, और बहुत सारी कलीसियाओं में भी ऐसे लोग हैं जिनका जो मन है वो इस संसार के अंदर लगा हुआ है। So dear brothers and sisters, let us love the Lord and have our mind set on following Jesus only. इसलिए भाई बहनों, हम परमेश्वर से प्रेम करें और हमारा जो मन है वो परमेश्वर की बातों में और उनके राज्य में लगा रहे। And we should not worry because God will take care of all our earthly needs. और इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संसार में जितनी भी हमारी जरूरत है उन सभी का ध्यान रखेंगे। He will take care of our food, our clothes, our housing, our job. और परमेश्वर हर एक बात का ध्यान रखेंगे, हमारे खाने का, हमारे रहने का, हमारे नौकरी का, हमारे स्वास्थ्य का, हर एक बात का ध्यान रखेंगे। Even about our marriage. और वो हमारी शादी के लिए भी प्रभु हमारा ध्यान रखेंगे। So we must seek to please the Lord with all our hearts.
और हमें सिर्फ एक बात खोजनी है कि हम परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से प्रसन्न करें So to keep our spirit completely close to the Lord, और अपनी जो आत्मा है उसको परमेश्वर के बहुत ही नजदीक रखें। just like Mary, she had a love for the Lord. She waited at the feet of Jesus and loved the Lord. और जैसे मरियम ने कहा कि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वो प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु को सुन रही थी। She did all her hard work, but the first priority was the Lord in her life. वो बहुत मेहनत करती थी, पर उसका सबसे प्रथम उद्देश्य जो था वो था प्रभु के चरणों पर बैठकर उन्हें सुनना। And that's why Jesus said, I won't tell her to go back into the world to do all the worldly hard work. She should love me, and then all the other things will fall into place. और इसलिए प्रभु ने कहा कि उसे मरियम को जरूरत नहीं कि वो जाकर फिर मेहनत करे, वो जो बाकी सारी चीजें वो अपने आप हो जाएगी जब वो परमेश्वर को, प्रभु को पहले सबसे पहले प्रेम करेगी। So, dear brothers and sisters, I found that following Jesus is a very happy thing to do. और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने अपने जीवन में ये पाया है कि प्रभु का पीछा करना सबसे अच्छी चीज है। Following the world and all the things of this world will bring us into much grief. और अगर हाँ, इस संसार से प्रेम करना, इस संसार के पीछे जाना, वो हमारे जीवन में बहुत सारे दुख को लेकर आएगा। Don't copy the customs and the traditions of the people around you. और अपने आसपास के लोगों का जो रहन सहन है, उन लोग वो जिस प्रकार रहते हैं, उन लोगों के जो परंपराएं हैं, उनको आप उनका पालन मत करिए। Be like a light in this world. और इस संसार में ज्योति के समान रहें। We be light in the darkness of so many believers, and among Christians and non-Christians, we can be a light to them. और इस संसार में हम ज्योति के समान रह सकते हैं, मसीहों के बीच में भी और अन्य जाति लोगों के बीच में भी। By living the truth, by loving the truth and obeying the truth. और सत्य से प्रेम करके और सत्य के लिए, सत्य के हिसाब से जीकर। So we praise God, brothers and sisters, that God is speaking to our hearts and help us to live every day for the Lord. और इसलिए हम परमेश्वर का भाइयों बहनों स्तुति करते हैं कि हम प्रभु के लिए जिए और प्रभु से प्रेम करें। So let us pray. प्रार्थना, आइए हम प्रार्थना। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय कि हम आपके चेले हैं प्रभु जी। आपने पवित्र आत्मा हमारा दिल में उंडेला है प्रभु जी, ताकि हम आपके लिए जिए प्रभु जी। इस संसार के इतना सारा परीक्षाएं आते हैं प्रभु जी, शैतान हमको लुभाते हैं प्रभु जी। Satan tempts us so much in many ways. Dear Lord, help us to come closer to you and live for you, Lord. And Lord, not go into the wrong things, Lord. Fill us with the Holy Spirit, Lord, that we may always obey you, Lord, rather than the things of the desires of this world, Lord. Bless our lives, Lord, and help us to walk faithfully every day, right up to the very end of our lives. हर दिन, Lord, हम आपके साथ चले प्रभु जी, अंत तक प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, एक एक दिन हम आप हमको देते हैं ताकि आपके लिए हम जिए प्रभु जी। लॉर्ड, जो कुछ भी हम करें आपके महिमा के लिए करें, हमारे इच्छा के लिए नहीं प्रभु। हमारा इच्छा हमेशा आते हैं लॉर्ड प्रभु, लेकिन हम आपकी इच्छा के लिए हमको जीना है प्रभु जी। पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी। जब आप हम हमको ताड़ना देते हैं प्रभु जी, हमको हम नम्र होने के लिए हमको एक मदद करे प्रभु जी, ताकि आपके वचन आपका पालन करे प्रभु जी। हमारा मन विचार आपके ऊपर रहे प्रभु जी। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में उत्सुकता आए और शांति और प्रेम और आनंद आए प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, वी प्रे और ब्लेस द चर्च लॉर्ड, ब्लेस ऑल ऑफ अस। हम क्या आपके वचन के ऊपर हम मनन करें प्रभु जी। हालेलुया। हम यीशु के नाम में ये मांगते हैं, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि सब लोग वफादार रहे प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ दिन प्रतिदिन चले। थर्सडे इज द सिस्टर्स मीटिंग हो है, तो बाकी हम लोग बाकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, तो हम आपको कहते हैं कि वो नया एक पुस्तक है, गुड फाउंडेशन, दैट इज अच्छी नींव, हिंदी में मराठी में है, वो सब पढ़े। फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स, रिपेंटेंस, फेथ, बैप्टिज्म, डिसाइपलशिप, ये 4 चैप्टर्स thoroughly पढ़ ले। इसके बाद हम लोग एक सेशन ले लेंगे, 1 or 2 sessions. We will say that so that you can be ready to have sincerely follow the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की सच्चाई से पीछा करें। So let us pray for one another. Thank you, in Jesus' name.